بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں رواں سال مانسون میں زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، ڈینگی کے بڑھتے کیسز پر تشویش ہے۔ پوری انتظامیہ متحرک ہے، فیلڈ میں موجود ہے۔ کمشنر لاہور محمد علی رنداوا کا کہنا ہے رسپانس ٹائم کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے عمران اکبر کمشنر لاہور کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی عمران اکبر، کمشنر لاہور کیا کہتے ہیں بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر میں جہاں پر سموگ کا راج ہے اسی طرح اب ڈینگی کا بھی راج برقرار ہو گیا ہے، اور اس والے سے کمشنر لاہور جو ہے وہ ایکٹیو ہیں اور متحرک ہیں، انتظامیہ کو بھی متحرک کیا ہے۔ ڈینگی کی صورتحال جو ہے وہ اس وقت ابتر ہو چکی ہے اور مریضوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ کمشنر لاہور ڈویژن چودھری محمد علی رنداوا ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے ہی بات کریں گے۔ سر، کیا ماجرا ہوا ماہ اگست، ماہ ستمبر، ماہ اکتوبر، ماہ نومبر میں ہر بار ڈینگی جو ہے وہ آتا ہے، مگر اس کے اوپر جو تیاری ہے وہ کس طرح کی چل رہی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو منتھس ہیں اس میں جو پری مونسون تک مونسون کے بعد ڈینگی کا ایک جو ہے وہ ایشو آتا ہے تمام بڑے شہروں میں، خاص طور پہ لاہور میں۔ اور اگر آپ دیکھیں پچھلے سال کا ریکارڈ کے حساب سے دیکھیں تو ابھی ہم بہت اچھا چل رہے ہیں ڈینگی کے اوپر، لیکن چونکہ اس دفعہ بارش بہت زیادہ ہوئی ہے، مور دین 1000 ملی میٹر بارش ہم ریسیو کر چکے ہیں۔ عام طور پر مونسون سیزن میں 500 ملی میٹر ہوتی ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پچھلے سال سے شاید ٹرینڈ چینج ہو۔ تو اس کے لیے ہم نے دیکھیں سب سے امپورٹنٹ 2-3 ایشوز ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہوتی ہے اویئرنیس، اس کے لیے ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ کے تھرو ہم کیمپین بھی چلا رہے ہیں، بچوں کا 0 پیریڈ بھی اسٹارٹ کروا دیا ہے۔ سیکنڈ ایشو یہ ہے کہ ہماری افیکٹو ٹیمز مارکیٹ کام کر رہی ہیں، اس کے لیے ڈپٹی کمشنر آفس اور ایون میں بھی خود جا کے فیلڈ میں دیکھ رہا ہوں اور لوگوں کو ساتھ ساتھ گائیڈ کر رہا ہوں، جہاں پہ ایشوز ہیں اس کو فلیگ کر رہا ہوں، جہاں پہ HR کے ایشوز تھے اس کو بھی ہم نے ٹیک اپ کر لیا۔ تھرڈ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا ریلائبل آنا چاہیے، اس کے لیے ہم نے تمام پرائیویٹ ہاسپٹل، تمام سرکاری اسپتال، بے شک اسپیشلائز اسپتال ہیں یا جو بھی ہیں، ان سے ہم ڈیٹا لینے کے لیے ان کو ڈیٹا کی ٹریننگ بھی دینی شروع کر دی ان کے فوکل پرسن کی، تاکہ ہمارے پاس ریلائبل ڈیٹا بھی آئے۔ سو وی ہیو ٹو گو لاجیکلی۔ اس میں میری سیکٹری ہیلتھ سے بات ہوتی ہے، ہم یہ تھوڑی سی بیسک چینجز کر رہے ہیں، SOPs کو ریوائز کر رہے ہیں۔ بالکل جی، گرین کور بھی اضافہ ہوگا۔ تفصیلاً کمشنر لاہور نے بریفنگ کی ہے، اس پر بھی ہوگی تاکہ ڈینگی کا مریضوں کی تعداد کم ہو سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا رنگ روڈ سودرن لوپ 3 کا دورہ، کمشنر لاہور، چیئرمین لاہور رنگ روڈ اتھارٹی اور متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ محسن نقوی کا پروجیکٹ پر جاری کام کی رفتار پر اطمینان کا اظہار، متعلقہ حکام کو منصوبہ مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ لیاقت علی، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس دورے کے حوالے سے؟ آج نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی نے لاہور رنگ روڈ سدرن لوپ 3 پروجیکٹ کا دورہ کیا ہے، مراکہ کے قریب پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا، ارتھ ورک کا معائنہ کیا اور پروجیکٹ کی الائنمنٹ کا بھی جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے پروجیکٹ پر جاری کام کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا اور پروجیکٹ کو مقررہ مدت میں تکمیل کے حوالے سے متعلقہ حکام کو ہدایت دی۔ ان کا کہنا تھا کہ رنگ روڈ سدرن لوپ 3 پروجیکٹ ہے، اس کی تکمیل سے عوام کو آمد و رفت کی بہترین سہولیات ملیں گی۔ 12 سال کے طویل عرصے کے بعد اس منصوبے کا آغاز کیا گیا ہے اور ٹھوکر نیاز گیج پر اس منصوبے کے باعث جو ٹریفک کا لوڈ ہے وہ کم ہوگا، لاہور کی ٹریفک بہترین طریقے سے ریگولیٹ ہو سکے گی۔ وزیر اعلیٰ کو اس موقع پر بریفنگ میں بتایا گیا کہ منصوبے کو مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے گا۔ سڑکی تعمیرات و مواصلات اور SWO کے حکام نے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو اس پروجیکٹ بارے بریفنگ دی۔ کمشنر لاہور ڈویژن چیئرمین لاہور رنگ روڈ اتھارٹی متعلقہ افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ٹھیک ہے لیاقت علی، بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اب آپ کو بتائیں چڑیا گھر میں جانوروں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ چڑیا گھر وائلڈ لائف پارکوں میں ویٹنری ڈاکٹرز کی قلت ہے۔ لاہور چڑیا گھر میں جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے ایک بھی ڈاکٹر موجود نہیں ہے۔ ڈائریکٹر چڑیا گھر عظیم ظفر کا کہنا ہے کہ چڑیا گھر میں ویٹنری ڈاکٹرز کی 2 سیٹیں خالی ہیں۔ مزید جانتے ہیں سامیہ سعید سے جو اس وقت ڈائریکٹر چڑیا گھر کے ساتھ موجود ہیں۔ جی سامیہ، کہیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت لاہور چڑیا گھر میں موجود ہوں اور یہی دیکھا جا رہا ہے کہ لاہور چڑیا گھر اور پارکوں کو اپڈیٹ کرنے کی بات تو کی جاتی ہے، لیکن اگر بات کی جائے انہی جانوروں کی دیکھ بھال کی تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ جانوروں کی لیے ڈاکٹرز کی شدید قلت ہے اور یہاں پر لاہور چڑیا گھر میں ایک بھی ویٹرنری ڈاکٹر جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے یہی کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹرز تو آتے ہیں لیکن وہ کچھ عرصے بعد جو ہے وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو میرے ساتھ اس وقت ڈائریکٹر چڑیا گھر عظیم ظفر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ پاس 2 ویٹرنری ڈاکٹرز کی سیٹس ہیں اور دونوں ڈاکٹرز کام کر رہے تھے، لیکن کچھ عرصے سے وہ ایکس پاکستان لیو سے پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں، تو ہمیں اس کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز کا بھی سامنا رہتا ہے، لیکن ہم نے عارضی طور پہ
हम युवास के जो डॉक्टर्स और फिजिशियन हैं उनसे रब्ता करते हैं, हमारे जो सफारी ज़ू के डॉक्टर रिजवान साहब हैं हम उनसे रब्ता करके इस तरह जो है वो मुतबादल ज़रा इस्तेमाल किए हुए हैं। जब आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत क्योंकि यहाँ पर पड़ती रहती है, जानवर जो हैं वो उनको कभी भी कोई भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो आपने क्या किया है डॉक्टर बुलवाने के लिए यहाँ पर? जिसमें ऐसे है कि कल मैंने मीटिंग डायरेक्टर जनरल साहब से की है, तो वो भी अर्जेंटली इसके ऊपर सोच रहे हैं। उम्मीद है एक आध दिन में पोस्टिंग हो जाएगी किसी न किसी डॉक्टर साहब की। तो आर्जी तौर पे जैसा आपको बताया है कि हम युवा से और डॉक्टर रिजवान साहब जो सफारी ज़ू से हैं उनसे राब्ते में हैं, तो इस तरह हम जो है अपने वो मैनेजमेंट किए हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि लाहौर चिड़ियाघर में ताहाल जो हैं वो 2 सीट्स हैं वेटरनरी डॉक्टर्स की, लेकिन उन सीट्स पर जो डॉक्टर्स हैं वो तैनात नहीं किए गए हैं, जिनके बाइस इनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर यही देखा जाता है अगर कोई जानवर जो है वो बीमार हो जाता है तो इनको जो है वो मुतबादल ज़राए जो हैं वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं, सफारी ज़ू से मंगवाना पड़ता है, जिनके बाइस इनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए तो पंजाब वाइल्ड लाइफ में टोटल जो रेगुलर वेटरनरी डॉक्टर्स हैं उनकी 14 सीट्स रखी गई हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि वो 14 सीट्स पर डॉक्टर जो हैं वो तैनात नहीं किए गए। जी ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर का इंसदादे डेंगू सर्विलांस मॉनिटरिंग के लिए मॉडल टाउन ए ब्लॉक का दौरा किया गया। इंसदादे डेंगू टीमों के इंडोर और आउटडोर रिकॉर्ड को चेक किया गया। ऐसी मॉडल टाउन और CEO हेल्थ अथॉरिटी ने ब्रीफिंग दी है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का ये कहना है कि डेंगू केस रिस्पॉन्स बर वक्त होने चाहिए, कोताही की गुंजाइश नहीं है। मजीद जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने इंसदादे डेंगू सर्विलांस मॉनिटरिंग के हवाले से मॉडल टाउन ए ब्लॉक का दौरा किया है। इसमें इसी मॉडल टाउन और CEO हेल्थ अथॉरिटी ने डेंगू सर्विलांस पर ऑन स्पॉट ब्रीफिंग दी है। इंसदादे आगाही मुहिम को तेज किया जाए, मॉडल टाउन सोसाइटी में घर घर तक आगाही फैलाई जाए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि मुजमा मरीज के घर की एतराफ 17 घरों में और मुस्बत केस पर मरीज के घर के एतराफ में 49 घरों में स्प्रे पर फार्मूला तय हुआ है और कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हर जगह पे स्प्रे करवाया जाए, इंडोर आउटडोर एक्टिविटी की जाए। इसके साथ साथ डेंगू लार्वा पर पूरे इलाके में डीप डेंगू सर्विलांस हर सूरत की जाए। मुस्बत डेंगू केस पर मरीज के घर के साथ इसके वर्क प्लेस की भी डीप सर्विलांस करवाई जाए। कमिश्नर लाहौर ने मॉडल टाउन में आउटडोर इंडोर डेंगू टीमों का रिकॉर्ड चेक किया। डेंगू केस रिस्पॉन्स पर वक्त होने चाहिए। इस वाले से लाहौर में 25,960 हॉटस्पॉट्स मौजूद हैं, इनकी बाकायदगी से स्वीपिंग की जाए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा के दौरे के दौरान CEO हेल्थ डॉक्टर फैसल, AC मॉडल टाउन साहबजादा यूसुफ और दीगर अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान। डेंगू ने जोर पकड़ लिया। सुबह भर में शहर लाहौर डेंगू लार्वा को तलफ करने की दौड़ में 22वें नंबर पर आ गया। जिला इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंसदादे डेंगू के मतलूबा इंतजामात करने से कासिर। सरकारी रिपोर्ट ने कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। कमिश्नर लाहौर डिवीजन इंतजामिया पर बरहम हो गए। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। डेंगू के बढ़ते खतरात, लाहौर में खातिर ख्वाह ना हुए इंतजामात। पंजाब भर में लार्वा तल्फ करने की दौड़ में लाहौर का 22वां नंबर आ गया। लाहौर डिवीजन में डेंगू के 2501 मरीज मौजूद हैं। मुश्तबा मरीजों की तादाद 2241 है। लाहौर में मुसद्दिका मरीजों की तादाद 270 है। जिला इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंसदादे डेंगू के इकदाम करने में नाकाम। सरकारी रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। कमिश्नर लाहौर डिवीजन इंतजामिया पर बरहम हो गए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि इंसदादे डेंगू कोशिशों में लाहौर का 22वें नंबर पर आना परेशान कुन है। मैनुअल डाटा एंड्रॉइड पर फौरी शिफ्ट किया जाए। एक हफ्ते में डेंगू लार्वा की अफजाइश कंट्रोल ना हुई तो छुट्टी समझे। शुरू से जो मैनुअल एक्टिविटीज़ हैं वो एंड्रॉयड एक्टिविटीज़ की तरह आपको एकदम नज़र नहीं आती। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है एफर्ट हो। एफर्ट अगर नज़र ना आए, रिकग्नाइज ना आए तो फिर उससे रैंकिंग में फ़र्क पड़ता है। तो मैंने इनसे कहा था कि तमाम मैनुअल एक्टिविटीज़ एंड्रॉयड के ऊपर ले आए। शहर लाहौर मॉडल शहर होने के बावजूद डेंगू की जद में आ गया। इंतजामिया की कार्रवाई दौरों, फोटोशूट और मीटिंग्स तक महदूद। कैमरा टीम के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। हज़रत अली हजवेरी के 980वें उर्स मुबारक की तैयारियों से मुतालिक इजलास हुआ है। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने इजलास की सदारत की है। सिक्योरिटी, LWMC, ज़िला इंतजामिया, मुतल्लिका महकमों के नुमाइंदों की शिरकत। 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज़ 18 सितंबर से होगा। तैयारियों के हवाले से राहील अली सजाद। हज़रत दाता गंज बख्श के सालाना 980वें उर्स के तैयारियों के हवाले से आज अहम इजलास जो है वो सेक्रेटरी ऑफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी के ज़ेर सदारत जो है वो मुनक्किद हुआ, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा मुतल्लिका तमाम इदारों के जो है वो नुमाइंदगान ने शिरकत की ताकि उर्स की जो तकरीबात हैं और जो इंतज़ामात हैं उनको जो है वो हतमी शक्ल दी जा सके।
हमारे साथ सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं कि उसके हवाले से क्या तैयारियाँ जो हैं वो की जा रही हैं। आज आपने देखा है कि इसमें पंजाब के जितने सरकारी इदारे हैं जो उर्स के हवाले से मुख्तलिफ ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, उन सब के ज़िम्मेदारान यहाँ मौजूद थे। और उर्स शरीफ के हवाले से जो बहुत बड़े चैलेंज होते हैं उसमें सिक्योरिटी सरफहरिस्त है, तो पूरी पंजाब गवर्नमेंट इस पर पूरी तरह मुस्तैद है। और इस हवाले से जो स्पेशल ड्यूटी रोस्टर हैं वो जारी कर दिए गए हैं। और मौजूदा चीफ मिनिस्टर ने इस ज़मन में अब तक के जो डेवलपमेंट स्कीमें हैं उसके लिए 350 मिलियन वो मुख्तस किए हैं। और उसमें दाता दरबार है, हज़रत बाबा फरीद है, हज़रत मियाँ मीर है, हज़रत बीबी पाक दामन का श्राइन है। तो ये आज के दौर की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि सूफिया के अंदाज़ और उनके अफकार की तरवीज को फैलाए बगैर हम सोसाइटी में रवादारी और अमन कायम नहीं कर सकते। उनकी बात सुनी, उनका कहना ये था कि 3 रोज़ा जो उसकी तकरीबात हैं उनको उसके लिए जो है वो कमेटियाँ हतमी जो शक्ल दे दी गई है, वो अपने इंतजाम कर रही हैं। और इसके अलावा 3 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस का भी जो है वो इनकाद किया जाएगा। ये जो दाता दरबार का उर्स है ये 17, 18, 19 को जो है वो शुरू किया जा रहा है सफ़र के महीने में। और इस हवाले से जो है वो तैयारियों के लिए आज इजलास जो है वो मुनक्किद किया गया था। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। महकमा रेलवे लेस्को का नादहिंदा निकला, 88 मिलियन रुपए का बिल अदा न किया। बिल की अदम अदायगी पर लेस्को हुकाम ने रेलवे हेडक्वार्टर की बिजली काट दी। रेलवे हेडक्वार्टर की बिजली मुनक़ता किए जाने पर दफातर में काम ठप हो गए। तफसीलात क्या है फहद अमीन से जानेंगे। फहद आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सरकारी नादहिंदगान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। और इस सिलसिले में महकमा रेलवे के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई है। महकमा रेलवे भी जो है वो लेस्को का नादहिंदा है। 88 मिलियन रुपए से जायद की अदम अदायगी पर आज जो है वो लेस्को इंतजामिया की जानिब से रेलवे हेडक्वार्टर, रेलवे म्यू गार्डन, वर्कशॉप्स की बिजली जो है वो मुनक़ता कर दी गई। लेस्को की जानिब से रेलवे हेडक्वार्टर की बिजली मुनक़ता किए जाने पर दफातर में काम जो है वो ठप हो गया। अफसरान और मुलाजमीन गुफ अंधेरे में बैठकर जो है वो काम करने पर मजबूर रहे। जनरेटर के जरिए चंद दफातर को जो है वो बैकअप दे दिया गया। ताहम रेलवे इंतजामिया की जानिब से जो है वो कहा जा रहा है कि लेस्को को 30 मिलियन रुपए की अदायगी का फैसला किया गया। और रेलवे हुकाम की यकीन दहानी पर जो है वो बाद लेस्को की जानिब से अब बिजली बहाली का अमल शुरू कर दिया गया है। जी बिजली बहाली का अमल शुरू कर दिया गया है। फहद अमीन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। बिजली के बिल देखकर अवाम बिलबिला उठे। टाउनशिप के मकीन और ताजर सरापा एहतजाज हैं। बिजली की कीमतों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना है कि मौजूदा हालात में 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो चुका है। राहील अली हमारे साथ मौजूद है। राहील, कहिएगा क्या कहते हैं अवाम? ये बिजली की बिलों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफे के बाद टाउनशिप के मकीन और ताजरों ने जो है वो शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे और इस हवाले से उनका कहना यह था कि हुकूमत की जानिब से आए रोज जो है वो बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं, जो अवाम है, वो शदीद मुश्किल का शिकार हो चुके हैं। अवाम का पारा हिल चुका है और वो इतने परेशान हो चुके हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। मुजाहिरीन का कहना यह था कि बिजली के बिल अदा करने के लिए खवातीन जो है वो जेवरात बेच रही हैं। हुकूमत का किसी चीज पर कंट्रोल नहीं। आटा, घी, चीनी और दीगर ज़रूरत जिंदगी की कीमतें भी जो है वो आसमानों को छू रही हैं। उनमें मुजाहिरीन का कहना यह था कि महंगाई पर कंट्रोल ना किया गया तो अवाम पर एक सुनामी जो है वो हुक्मरानों को बहा कर ले जाएगा। जो शुरा थे उन्होंने हुकूमत के साथ शदीद नारेबाजी की और मुतालबा किया कि बिजली के नरखों में किया गया इजाफा जो है वो फौरी तौर पर खत्म किया जाए। जी ठीक है राहिल अली, बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ती महंगाई और तनख्वाहों में ताख़ीर पर रेलवे मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। रेलवे प्रेम यूनियन का इंजन शेड में तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। तफसीलात के लिए बात करते हैं फहद अमीन से। जी फहद, बताइएगा। आज बिल्कुल बढ़ती हुई महंगाई और तनख्वाहों की ताख़ीर से अदायगी पर रेलवे मुलाजमीन भी सरापा एहतजाज हैं। आज रेलवे प्रेम यूनियन के ज़ेरे तमाम इंजन शेड लाहौर में जो है वो तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत जो है वो मरकजी सदर लाहौर डिवीजन प्रेम यूनियन शेख मोहम्मद अनवर और ज़ियाउद्दीन अंसारी ने की। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर और प्ले कार्ड उठा रखे थे। रेल मजदूरों ने गले में एहतजाजन सूखी रोटियों से बने हार भी जो है वो पहन रखे थे। तनख्वाहों की अदम अदायगी का सिलसिला जो है वो बंद करने का मुतालबा किया गया और ये भी कहा गया कि रेलवे मजदूरों की जानिब से कि अगर जो है वो तनख्वाहों की अदम अदायगी का सिलसिला बंद ना किया गया तो रेल का पहिया जो है वो जाम कर सकते हैं। मुजाहिरीन का ये भी कहना था कि हर माह रेलवे इंतजामिया की जानिब से जो है वो तनख्वाहें ताख़ीर से दी जाती हैं। महंगाई इस कदर ज्यादा है कि गुजारा करना जो है वो मुश्किल हो चुका है, मगर रेलवे इंतजामिया को जो है वो होश नहीं आ रहा। रेलवे इंतजामिया भी होश के नाखुन ले और मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाह की अदायगी यकीनी बनाए। जी बहुत शुक्रिया फहद आपका।
LDA टीमों की ताजपुरा में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई। बोगस फाइलों पर बनाए गए 2 घर जुज़वी तौर पर मिसमार कर दिए गए। मिसमार किए गए घरों को मुतादिद बार नोटिस जारी किए गए थे। जैनुल आबदीन, कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? ये कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर LDA की टीमों ने ताजपुरा में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है और LDA अमले ने बोगस फाइलों पर बनाए गए 5 मरले के 2 घर जुज़वी तौर पर मिसमार कर दिए हैं। इस ऑपरेशन की निगरानी डायरेक्टर हाउसिंग 5 शहबाजुल हक बुर्की ने की है। LDA टीमों ने दोनों घरों को जुज़वी तौर पर मिसमार करके कब्जा हासिल कर लिया है, जिसमें प्लॉट नंबर 261C ताजपुरा को जुज़वी तौर पर मिसमार किया गया। इसी तरह प्लॉट नंबर 124C ताजपुरा को भी जुज़वी तौर पर मिसमार किया गया। ये मिसमार किए गए घरों को मुतअद्दिद बार नोटिस भी जारी किए गए थे, मगर इसके बावजूद इन घरों पर जो कब्जा माफिया बराजमान था उनकी तरफ से नोटिस पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया, जिसकी बिना पर आज ये कार्रवाई की गई है और 2 घरों को जुज़वी तौर पर मिसमार करते हुए इनका कब्जा LDA ने पाक सरकार जब्त कर लिया है। ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका हमें आगाह करने के लिए। और उधर ज़िले इंतज़ामिया का गिरां फरोशों को नकेल डालने का फैसला किया। सब्जी मंडियों में कीमतें कंट्रोल करने के लिए अफसरान को ड्यूटियाँ तफवीज़ कर दी गई हैं। बदामी बाग मंडी में ADC रेवेन्यू और AC कैंट बोली के अमल की निगरानी करेंगे। कहना, सिंहपुरा, इकबाल टाउन, रायवंड मंडी में अफसरान कीमतों और मयार का जायज़ा लेंगे। तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। आज बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर शहर खरनोश में ग्राम फरोशी पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुतहरिक हैं। फ्रूट व सब्जी मंडियों में कीमतें कंट्रोल करने के लिए अफसरान को ड्यूटियाँ तफवीज़ करती हैं। बदामी बाग मंडी में ADC रेवेन्यू और AC कैंट बोले के अमल की निगरानी करेंगे, जबकि नोटिफिकेशन जो किया गया उसके मुताबिक कहना काचा मंडी में ADCF और AC मार्टम कीमतों का जायजा लेंगे। सिंहपुरा मंडी में ADC HQ और AC शालीमार मुतबादिल दिनों में मौजूद होंगे। इकबाल टाउन मंडी में ADC G और AC कैंट बोली की अमल का जायजा लेंगे। रायवंड मंडी में AC कैंट जो है कीमतों और मयार का जायजा लेंगे। इस वाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना है कि अफसरान हर दिन मंडी की कीमतों का सरकारी नरनामों पर इतलाक यकीनी बनाए। आवाम तक मयारी और नरफों पर सब्जी व फलों की फराहमी के लिए अफसरान फील्ड में मौजूद रहेंगे। नाजायज मुनाफाखोरों और गैर कानूनी तरीके से कीमतें बढ़ाने वालों के खिलाफ पूरी एक्शन लिया जाएगा। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका।